ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ فریض حج ادا کرنے کے بعد جموں کشمیر کے حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع۔ آج پہلے قافلے کے ذریعے 145 حجاج کرام پہنچے سری نگر۔ موسم خرابی کی وجہ سے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شری امرناتھ یاترا آج عارضی طور رہی معطل، تاہم یاتریوں کا تازہ جتھا جموں سے آیا وادی۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ۔ سوموار سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی کارروائی خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کی خاطر تعاون کیا طلب، اور عوام تک صحیح اور مفید جانکاری پہنچانے میں IIS افسراں کا رول قابل ستائش۔ مرکزی وزیر برائے اطلاعات و نشریات انوراگ سنگھ ٹھاکر۔ خبریں تفصیل سے۔ امسال حج کا مقدس فریضہ ادا کرنے کے بعد جموں کشمیر کے حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ آج سے شروع ہوا۔ آج پہلی پرواز کے ذریعے 145 حجاج کرام پر مشتمل پہلا قافلہ سری نگر پہنچا۔ سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حجاج کرام کا استقبال صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے اور کئی دیگر افسران نے کیا۔ صوبائی کمشنر نے گرم جوشی کے ساتھ حجاج کرام کا استقبال کیا اور انہیں اس مقدس فریضے کی ادائیگی پر مبارکباد پیش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب میں جموں کشمیر کے حجاج کرام کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ حجاج کرام نے حج کے دوران وہاں کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے LG انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر صوبائی کمشنر نے حجاج کرام کی وطن واپسی کے لیے کیے گئے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ موسم خرابی کی وجہ سے شری امرناتھ یاترا آج بالتل اور پہلگام دونوں راستوں سے عارضی طور معطل رہی۔ ذرائع کے مطابق بالتل، چندنواڑی، شیشناگ اور پنجترنی کے مختلف علاقوں میں آج دن بھر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران کل شام تک 1,72,000 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے تھے۔ دریں اثنا آج جموں کے بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے 223 گاڑیوں میں 5,838 یاتریوں کو سری نگر کے لیے روانہ کیا گیا، جن میں سے 2,547 یاتری بالتل کے راستے سے امرناتھ گفا جائیں گے، جبکہ 3,291 یاتری جنہیں پہلگام کے راستے سے جانا ہے کو آخری اطلاعات ملنے تک میر بازار اور قاضی گڈ میں 2 یاتری نواس کیمپوں میں فی الحال رکھا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ان کیمپوں میں یاتریوں کے لیے سبھی سہولیات دستیاب ہیں اور موسم میں بہتری کے بعد انہیں پہلگام کے ننون بنیادی کیمپ کی طرف جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے آج شادی پورہ بانڈی پورہ کا دورہ کر کے وہاں شری امرناتھ یاتریوں کے لیے قائم کیے گئے عارضی کیمپ میں سیکیورٹی انتظامات، پانی و بجلی کی سپلائی، طبی اور دیگر ضروری سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر DGP نے کہا کہ یاترا کی احسن طریقے سے انجام دہی یقینی بنانے کے لیے سبھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یاتریوں سے بھی اظہار خیال کیا اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تندہی اور حد درجہ ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی دینے کے لیے ستائش کی۔ DGP نے منی گام گاندربل میں قائم یاترا کیمپ کا بھی معائنہ کیا۔ جموں میں آج جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی کے اہتمام سے منعقدہ ایک تقریب کے دوران نئے اندراج شدہ وکلاء کی حلف برداری کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے دوران جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے جج جسٹس وسیم صادق نرگال نے ان وکلاء کو حلف دلایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وکلاء کا رول انتہائی اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے ان نئے وکلاء سے کہا کہ وہ ملک کے قداور قانون دانوں اور معروف وکلاء کے نقش قدم پر چلیں۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء نے ملک کی سیاست اور آزادی کی تحریک میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اس موقع پر جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی موجود تھے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات دور کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے۔ پارٹی پریس نوٹ کے مطابق موصوف میں آج شمالی و جنوبی کشمیر کے عوامی وفود، پارٹی عہدیداروں اور معزز شہریوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سڑکوں اور گلی کوچوں کی حالت ناگفتبہ ہے اور عوام کو بنیادی سہولیات کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ موصوف نے کہا کہ بے روزگاری کی وجہ سے یہاں کے نوجوان مایوس ہو کر رہ گئے ہیں۔ چندنواڑی اوڑی میں آج کانگریس نے ورکروں کے ایک روزہ کنونشن کا اہتمام کیا۔ کنونشن کی صدارت کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر تاج محی الدین نے اپنے خطاب میں کارکنوں پر زور دیا کہ وہ آنے والے چیلنجوں کے لیے تیار رہیں اور پارٹی کو ہر سطح پر مستحکم کرنے کے لیے اپنا بھرپور تعاون دیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جموں کشمیر کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ موصوف نے کہا کہ عوام کو درپیش مشکلات دور کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی جائیں گی۔ اس دوران ضلع بارہ مولہ کے تنظیم امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔
जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां सचिन कुमार ने आज शुपियां के कापरन और रामनगरी ब्लॉकों का दौरा करके दस्तयाब तिब्बी और तालीमी सहूलियात का जायजा लिया। मौसूफ ने इन ब्लॉकों में तरक्याती प्रोजेक्टों पर हो रही पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने PSC सद्दों के मुआयने के दौरान मुतल्लिक अहलकारों को अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब रखने की हिदायत दी। उन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कापरन का भी मुआयना किया। मौसूफ के हमरा कई मुतल्लिक अफसरान भी थे। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 199 करोड़ 71 लाख से ज्यादा कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने बताया कि कल ऐसे 22,93,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। सरदस्त कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह 98.48% है। गुज़श्ता 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। इसी अरसे के दौरान 20,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए हैं। भारत में सरदस्त कोविड से मुतासर पाए जाने वाले अफराद की तादाद 1,40,760 है। पिछले 24 घंटे में 56 अमवात की खबर है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 224 नए मरीजों की निशानदही हुई है, जिनमें से 112 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि कश्मीर सूबे से 112 केस सामने आए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 113 मरीज शिफायाब हुए हैं। अहमदनगर श्रीनगर में आज सुबह एक सड़क हादसे में इलाही बाग का रहने वाला फारूक अहमद वानी जाम बहक जबकि उसकी अहलिया नसीमा जख्मी हुई। जराये के मुताबिक यह हादसा 90 फीट रोड पर रूनुमा हुआ। हादसे के बाद अगरचे दोनों को जख्मी हालत में स्किम सोरा मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम फारूक अहमद वानी रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। पुलिस ने हादसे के हवाले से बाज़ाबिता मामला दर्ज किया है। यछामा कंगन में एक शख्स और उसकी 8 साल बच्ची उस वक्त झुलस गई जब उसके घर में मौजूद गैस सिलेंडर से अचानक गैस खारिज हो गई। ज़राए के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो गैस सिलेंडर तब्दील कर रहे थे। मुतासरा शख्स की शनाख्त अब्दुल मजीद बजाज और उसकी बच्ची नसरीना बानू के तार हुई है। दोनों को इब्तिदा में तिब्बी इमदाद ट्रामा अस्पताल कंगन में दी गई, जिसके बाद उन्हें स्किम सौरा मुंतकिल किया गया। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज अदबी संगत कश्मीर के एहतमाम से मुनाकिद तकरीब के दौरान कुरान पाक के गोजरी तर्जुमे की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस तकरीब के दौरान गोजरी की ताज़ा मदबूआत पयाम हसन, मन का मोती और शायें भी इजरा की गई। इस दौरान बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में गोजरी शोबा कायम करने के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद को एजाज़ पेश किया गया। तकरीब में ट्राइबल अफेयर्स महकमे के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि तकरीब की सदारत मारूफ दानिश्वर और मुहक्किक मोहम्मद यूसुफ टेंग ने की। समनबल बदरन मागाम में आज से 2 रोज़ा फोक म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज हुआ। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर और संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली के बाहमी इश्तराक से मुनाकिदा इस फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब पर दूरदर्शन के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफीक मसूदी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जबकि तकरीब की सदारत सरकर्द अदीब और मुहक्किक हसरत गढ़ा ने की। इस मौके पर वादी के कई मारूफ गुलकारों ने अपने फन से सामीन को महजूज किया। इस दौरान गुलजार अहमद गनाई, मंजूर अहमद शाह और शफी सोपुरी को एजाज़ात से नवाजा गया। वजारत कल्चर के शुमाली जोन कल्चरल सेंटर पटियाला ने फौज के इश्तराक से कल्चरल फेस्टिवल लंगेट 2022 का एहतमाम किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में लंगेट में मुनाकिद किए गए इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। DDC चेयरमैन इरफान पंडित पुरी और फौजी, पुलिस व सिविल अफसरान ने भी इस फेस्टिवल में शिरकत की। जम्मू कश्मीर केबल कॉरपोरेशन और स्नो मोबाइल एसोसिएशन गुलमर्ग के बाहमी इश्तराक से सियाहती मकाम गुलमर्ग में मिशन क्लीन ड्राइव के नाम से एक सफाई मुहिम शुरू की गई। इस मशहूर सियाहती मकाम को आलूदगी से बचाए रखने और यहाँ की कुदरती खूबसूरती बनाए रखने की गर्ज से मुनाकिद इस मुहिम का आगाज गुलमर्ग केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO गुलाम जिलानी जरगर ने किया। अच्छी तादाद में स्नो मोबाइल एसोसिएशन से वाबस्ता लोगों और टूरिस्ट गाइडों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। म्यूनिसिपल काउंसिल शुपियां के चेयरमैन सुभाष कौल और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुहेल अहमद मलिक ने आज कस्बे में कूड़ा करकट जमा करने के लिए 7 मखसूस गाड़ियों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि मखसूस गाड़ियां घर घर जाकर कूड़ा करकट जमा करेंगी, जिसकी वजह से कस्बे की सफाई सुथराई यकीनी बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि
इस सूरत-ए-हाल में कूड़ा करकट को साइंसी तरीकों से ठिकाने भी लगाया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग ने आज ऑफिस कॉम्प्लेक्स नोपोरा डूरू में मकामी काश्तकारों और तलबा को इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के यौम तहकीक के हवाले से दिल्ली में मुनाकिदा तकरीब बराह रास्त दिखाने का एहतमाम किया था। ICAR की मुख्तलिफ हुसूलियाबियों के हवाले से इन काश्तकारों और तलबा को वाकिफ कराने के लिए केंद्र ने पहल की थी। इस मौके पर काश्तकारों के इस हवाले से भी जानकारी दी गई कि किस तरह वो ज़र्री और बागबानी शोबों में पैदावार को बढ़ा सकते हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास की कार्रवाई एहसन तरीके से चलने देने के हवाले से सभी पार्टियों से ताउन की अपील की है। मौसूफ ने आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने सभी जमातों के नुमाइंदों से यह अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी के साथ चलाने की खातिर अपना भरपूर रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि सभी सियासी जमातों से ये अपील की गई कि वो मुल्क और मुल्क के अवाम के मफाद से मुतालिक मामलात उभारें। उधर राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने भी कल ऐवान बाला में मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं की मीटिंग बुलाई है। सभी सियासी पार्टियों का ताउन हासिल करने की गर्ज से इसी दिन सरकार ने भी तमाम पार्टियों की मीटिंग तलब की है। मानसून इजलास 20 से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा। ये इजलास अहमियत का हामिल है क्योंकि इस अरसे के दौरान सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का चुनाव भी होगा। सदर जमहूरिया के ओहदे का चुनाव पीर के रोज होगा, जबकि नायब सदर के ओहदे का इंतखाब अगले महीने की 6 तारीख को कराया जाएगा। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार की स्कीमों के हवाले से जानकारी ज्यादा मौसर तरीके से आवाम तक पहुंचाने की जरूरत है। मौसूफ ने आज इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस अफसरों की तीसरी सालाना कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब पर खिताब करते हुए कहा कि रियासती सरकारों के इश्तराक से मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों की ज्यादा से ज्यादा फवायद मुल्क के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने मुल्क के गुरबा और ज़रूरतमंदों तक मुफीद जानकारी पहुंचाने के लिए इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अफसरों के रोल की सताज की। उन्होंने अफसरों से कहा कि वो इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ें। भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल निज़ाम खरीदने पर अपने सख्त कानून के तहत भारत पर पाबंदियां आयद न करने का फैसला किया है। एक कार्ड सा कानून अमेरिका के मुखालिफिन का पाबंदियों के जरिए मुकाबला करने के बारे में है। भारत की तरफ से S-400 फजाई दिफाई निज़ाम खरीदे जाने के बाद अमरीकी पाबंदियों का अंदेशा था, लेकिन भारतीय हुकूमत को हमेशा ये एतमाद रहा है कि वो इन पाबंदियों से बच निकल कर जाएगा। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ कि अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने एक कानूनी तरमीम को मंजूरी दी है। मौसम महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।